Hello, welcome back in this physics video, and we will have today. This is chapter third, motion in a straight line. Okay, so over here, motion already discussed in our previous videos. Before integration, these videos were given. Now over here, that motion. So further, we can say over here that three types of motion we are going to discuss. So motion which is along straight line, and this is said to be one dimensional motion. This is one dimensional motion. Now why it is said to be one dimensional? So just to check over here, this is the reference axis मतलब कि इसमें हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन, और इसमें दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ की जाती है, जिससे जहाँ पर हम क्या करते हैं, ओरिजिन से मेजरमेंट शुरू करते हैं. तो इसलिए इफ़ वी आर सपोजिंग दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड अ बॉडी इज मूविंग along एक्स एक्सिस. Okay, so let us suppose that it was at A. Okay, when time is of 5 second, when time is of 5 seconds, so at that time it was at A, and this is at 7 meter. Let us suppose this is at 7 meter, and after this 30 minute, when the time is of 30 minute, now it is at B. Okay, and this is let us suppose at 5 kilometer. Okay, now if it is said to us what is the position of this particle, so how we will mention? So we will say over here that its position, that its x coordinate is जो position, if we will say that its position at A, so its x coordinate is 7 and its y coordinate is 0. Okay, so where you will find this position? So you will find this position, it is only on x axis. Okay, no need to go along this y axis. So therefore only one coordinate is sufficient to tell exactly where this person is, or where this object is. And if we are talking of about, let us to have this is B. Okay, the person is from that 5 kilometer away from its origin in x axis. So where you will find? You will find him on this line only. Okay, you will not find him over here, or either over here, or either over here. Okay, so over here it is signifying over this B position is that x coordinate is how much? It is that 5 kilometer. Okay, and y coordinate is 0, so you will find him only on this position. So that means only one coordinate is sufficient to tell its position. तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए एक कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल. ठीक है, तो इसलिए वन डायमेंशनल क्या होता है? वन कोऑर्डिनेट टेल्स अबाउट पोजीशन. ठीक है, so this is said to be one dimensional. Now over here we are talking about this is said to be and that of motion in plane. ठीक है, तो second type of motion, it is motion in plane. Plane means to say over there that it is two dimensional. It is two dimensional. ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास कैसा मोशन हो जाता है? टू डायमेंशनल मोशन हो जाता है. नाउ which type of motion is said to be two dimensional? Now let me to suppose over here, this is the reference axis, x axis, y axis, and there is a particle over here at A. Now what you suppose that if you have to find him, so will you go along only x axis, or either will you go only along y axis? So if you will move only along x axis, will you find this A? क्या तुम्हें A मिल जाएगा अगर only x axis के along आप चलना शुरू करोगे? You will not get, you will not find him. And if you will start to move along y axis, अगर आप y axis के along चलना शुरू करोगे तब भी आपको A नहीं मिलने वाला. It means to say आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों एक्सिस में कंबाइंड चलना पड़ेगा. ठीक है, सो देन यू विल फाइंड दिस ए. तो इसलिए आप दोनों एक्सिस में कंबाइंडली जब मूव करोगे तो उस वक्त आपको क्या होगा? ए मिलेगा. तो इसका मतलब है ए की पोजीशन बताने के लिए आपके पास यहाँ पर ओरिजिन से वो एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, और इधर वाई एक्सिस में वो ओरिजिन से कितना दूर है, तो वो पोजीशन भी इसकी सिग्निफाई हो रही होगी. तो इसलिए इसकी पोजीशन शोन बाई द टू कोऑर्डिनेट. देयरफॉर दिस इज टू डायमेंशनल मोशन. तो ये मोशन इन प्लेन भी हो जाता है. तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है. वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो
तीन एक्सिस अगर हम शो करते हैं, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ जेड, ये जो हमारे पास प्लेन बनेगा, दिस इज़ सेड टू बी वाई जेड प्लेन. इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट ओनली दिस वन प्लेन, सो दिस इज़ जेड एंड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन. एंड इफ़ वी टॉकिंग ऑफ अबाउट ओनली दिस वन, सो इट इज़ वाई एक्स प्लेन. ठीक है, तो इसलिए अलग अलग से प्लेन हमारे पास बनते हैं. ठीक है, तो जिसमें दो कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है उस पोजीशन को शो करने के लिए. नाउ लेट अस टू टेक ओवर हियर, इट इज़ दैट ऑफ the third type of motion, it is said to be that space, that motion in space, or it is said to be and that three dimensional motion. ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, थ्री डायमेंशनल मोशन बोला गया है, इट इज़ थ्री डायमेंशनल. ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल में हमारे पास क्या हो जाता है, सो ओवर देयर दैट वी विल हैव, दिस इज द थ्री एक्सिस नाउ. इसमें एक्स वाई और जेड, तो हमारे पास जो पोजीशन है नाउ ओवर हेयर, व्हाट दिस पोजीशन यू विल मेंशन इट इन थ्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, तो इसलिए तीन कोऑर्डिनेट जो है वो उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली बताते हैं. सो दिस इज सेड टू बी ओवर हेयर दैट इट इज़ थ्री डायमेंशनल मोशन, और इट इज़ दैट मोशन इन स्पेस. ठीक है, सो दिस आर द types of motion which is discussed over here. Now this chapter is especially going to deal with that motion in a straight line. Okay, so motion in a straight line, so motion in a straight line mean to say that it is one dimensional motion, or you will also get this one as one dimensional, so it is 1D, two dimensional it is 2D, three dimensional it is 3D. ठीक है, तो हमारे पास जैसे स्ट्रेट मोशन मतलब कि एग्जाम्पल कौन सा होगा हमारे पास, तो इट इज़ दैट 100 मीटर रेस, जो स्प्रिंट रेस है हमारे पास, स्प्रिंट रेस वो क्या होती है, ऑन अ स्ट्रेट पाथ होती है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये कैसा मोशन हुआ, दिस इज सेड टू बी स्ट्रेट मोशन, और इधर वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, और वी कैन टेक अनदर एग्जांपल दैट अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड. जैसे हाईवे है, ठीक है, हाईवे जो हमारे पास मोस्टली क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट. ठीक है, तो इसलिए ऑन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन दिस कार मूव्स, ओके, सो इट्स मोशन इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, सो नेक्स्ट इज देयर प्लेन. तो प्लेन का मोशन कैसा होगा हमारे पास, सपोज दैट इनसाइड द रूम ऑन द फ्लोर यू हैव ड्रॉप्ड अ बॉल. आपने क्या किया, जो सॉरी ऑन द फ्लोर यू ड्रॉप्ड द बॉल. रूम के अंदर आपने क्या किया, जो फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर आपने एक बॉल को, टेनिस बॉल को ड्रॉप किया. ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेनिस बॉल है, ठीक है, ये किस तरह का मोशन करेगी, दैट्स विल हैव ओनली दैट अप एंड डाउन मोशन. मतलब कि इसमें क्या होगा, जो हमारे पास मोशन होगा वो कैसा होगा, जो दो डायरेक्शन में ये मोशन करेगा. ठीक है, इस तरह से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस, और जो ये अपवर्ड मूव करेगा वो वाई एक्सिस में हो जाएगा. तो इसलिए टू डायमेंशनल मोशन हमारे पास हो जाएगा. ठीक है, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट दैट काइट इन द एयर, अगर हम बात करें कि जो हवा के अंदर एक पतंग है, सो दिस काइट कैन मूव टू एनी डायरेक्शन, वो किसी भी तरफ जा सकती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, सो बैक फोर्थ, इन एनी डायरेक्शन इट कैन मूव. सिमिलरली ओवर देयर विद द एरोप्लेन, एरोप्लेन भी क्या करता है ये, मतलब कि थ्री डायमेंशनल मोशन होगा हमारे पास. ठीक है, तो ये किसी भी तरफ मूव कर सकता है. ओके, सो दस वी कैन हैव दिस इज ओवर हियर दैट the three types of motion. So thank you for watching this video.